how to be happy in problems. समस्याओं में कैसे खुश रहें। The first one, note it down. पहली बात लिख लीजिए, We can look at the past with the thanksgiving, then you will overcome. हम भूतकाल की ओर धन्यवाद के साथ में देख सकते हैं, तभी आप जयवंत हो सकते हैं। We can be look at the past with the thanksgiving when you say, thank you Lord for my past. Thank you Lord, I have overcome many problems. Thank you Lord for you have saved me in many dangerous things, in accidents and many problems. I thank you so much. When you say like that, your heart is rejoicing in God. Your spirit is rejoicing in God. Your body is rejoicing in God. 1 Thessalonians chapter 2:2 and Acts chapter 10 verse 10 to 34. And also when you read Philippians 4:4, rejoice in the Lord. Again I say rejoice in the Lord. जब हम अपने भूतकाल को देखते हैं और सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे जीवन के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन में भूतकाल में जो कुछ भी हो उन सारी बातों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 2:2, प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 10 से 34 और फिलिपियों 4:4 कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। When you are in teenage, you face some problem. जब आप नौजवान होते हैं तो कुछ अलग समस्याएं When होती you हैं। enter into youth life, you have faced some problem. जब आप जवानी में प्रवेश करते हैं तो कुछ अलग समस्या होती है। God protected you. प्रभु ने आपकी रक्षा की है, God saved you. प्रभु ने आपको He बचाया has है, forgiven you. प्रभु ने आपको क्षमा किया He है, has forgiven all your past उसने life. आपके सारे भूतकाल के जीवन को क्षमा So we किया should है। be thankful to God. आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। Say thank you Lord. कहे धन्यवाद प्रभु। So we should be more thankful. When you are thankful to God, you know, your heart will be rejoicing in God. Even though problems are around you, but you can be happy because you are a thanksgiving person. जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले होते हैं तो आपका दिल आनंद से भरा होता है, चाहे समस्याओं से घिरे ही क्यों ना हो, लेकिन आप धन्यवाद देने वाले व्यक्ति होते हैं, इसलिए खुश होते हैं। Second point, दूसरा पॉइंट, we can look at the present situation with the confidence because God is with you. And He promised that He will never leave you, dismay you. He will never forsake you. आप वर्तमान की परिस्थिति को भरोसे के साथ में देख सकते हैं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वो ना आपको कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आप में भरोसा होता है। Philippians 2:12, फिलिपियो 2:12, Philippians 1:6, फिलिपियो 1:6, Hebrews 4 verse 12. इब्रानियों 4:12। So problems may come, समस्याएं आएगी, trials may come, शायद परीक्षाएं आए, but we have confidence. लेकिन हमें भरोसा होता है God will help me. परमेश्वर मेरी मदद God will करेगा, help me to overcome. प्रभु जयवंत होने में मेरी मदद करेगा। There were two brothers. दो भाई थे, Every day they have to carry water from the down to the hill because their house is on a hill. उनका घर ऊपर पहाड़ पर था, इसलिए नीचे से वो पानी ऊपर ले जाया करते थे। प्रतिदिन यही काम था। In front of their house there's a hill, so they have to climb up and then go down and bring water. और उनके घर के सामने पहाड़ था, पहाड़ पर चढ़ना था, नीचे उतरना था और पानी लेकर आना था। So every day climbing this mountain itself a big challenge for और them. इसलिए प्रतिदिन इस पहाड़ पर चढ़ना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। Bringing water, getting ready and going back to job. पानी लेकर आना, तैयार होना, फिर नौकरी पर जाना। No vehicles. कोई गाड़ियां नहीं थी, All the way they have to do by walking. यानी हर जगह केवल पैदल जाना था। So every day they were climbing up mountain and going down and bringing water and they were tired. और हर दिन पहाड़ पर चढ़ते थे, नीचे उतरते थे, पानी लाते थे, थक जाते थे। So they prayed, तो प्रार्थना की, God give us a house in the down. उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमें पहाड़ के नीचे घर दे, Give me a house at plains. प्रभु हमें समतल जमीन पर घर दे, Otherwise, नहीं तो फिर remove this mountain in front of our house. हमारे घर के सामने से इस पहाड़ को हटा दे। Every day they were praying with this promise. Mark chapter 11 verse 23-24. मरकुस 11, 23 और 24 की इस प्रतिज्ञा के अनुसार वो प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे थे, Praying with confidence. भरोसे के साथ प्रार्थना कर रहे थे। They know that God will answer their prayer. जानते थे प्रभु उनकी प्रार्थना का उत्तर देगा। Either God may give us a house in plains. एक तो परमेश्वर समतल भूमि पर हमें घर देगा, Otherwise, नहीं तो this फिर mountain which is a hill in front of our house will be removed in Jesus' name. हमारे घर के सामने की ये जो पहाड़ी है, यीशु के नाम में ये हटा दी जाएगी। You know that area leader heard that prayer और उस एरिया के लीडर ने ये प्रार्थना सुनी and he was laughed at them. और वो उन पर हंस रहा था। Are you mad? क्या तुम पागल हो गए हो? Every day praying that Lord remove this mountain. How can God remove? हर रोज प्रार्थना करते हो प्रभु इस पहाड़ी को हटा दे, प्रभु कैसे हटाएगा? My forefathers lived in this village. तुम्हारे पूर्वज यहाँ पर रहते थे इस गांव में, Always climbing the mountain, going down for water. हमेशा पहाड़ पर चढ़ते थे, नीचे उतरकर पानी भरते And थे। you are praying today, Lord, remove mountain. How can it will happen? और आज तुम प्रार्थना कर रहे हो प्रभु पहाड़ हटा दे, ये कैसे हो सकता है? These young people told, तो इन जवानों ने उससे कहा, either God can give us a house in a down place, otherwise He will remove this mountain. एक तो परमेश्वर हमें नीचे समतल जमीन पर घर देगा या फिर ये इस पहाड़ को हटा देगा। They continued praying, my brother and sister. वो भाइयों और बहनों बस प्रार्थना करते चले You गए। know, continuous prayer brings answer. निरंतर प्रार्थना उत्तर लेकर आती है।
और फिर एक दिन उनके गांव में एक इंजीनियर आया और वो पहाड़ को गिनने लग गया। तो इंजीनियर ने कहा, इस पहाड़ को समतल बनाने का ऑर्डर आया है, यहाँ पर प्लेग्राउंड और स्कूल बनाने का ऑर्डर आया है। Luke chapter 18 verse 1 to 8 says a continuous prayer brings answer. लूका 18:1-8 तक कहता है कि निरंतर प्रार्थना उत्तर लेकर आती है। Widow was praying continually. विधवा निरंतर प्रार्थना कर रही So if थी। you're facing any problem, आप अगर कोई समस्या का सामना or करते हैं, sickness, cancer, or any kind of disease, whatever you name it, कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो या कोई भी किसी भी तरह की बीमारी हो, whatever the trouble, financial problem, maybe debts, maybe loan clearance, so many other things, चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे लोन हो, कर्जा हो, maybe physical problem, या शायद शारीरिक समस्या हो, problem in your house, आपके घर की समस्या हो, a problem outside, घर के बाहर की समस्या हो, problem in job, या नौकरी में कोई परेशानी maybe a हो, transfer, या ट्रांसफर की कोई समस्या similar हो, to not getting money, या पैसा नहीं मिल रहा हो, your money was stuck up with somebody, या आपका पैसा किसी के पास फंसा है nobody is favorable to you, और कोई आप पर कृपा नहीं कर रहा है, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, you can get the help. आप मदद पा सकते हैं Continuous prayer. निरंतर प्रार्थना के Luke द्वारा। chapter 18 verse 1 to 8. लूका अध्याय 18:1-8। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। When you pray with confidence, you can be happy in a present situation. जब आप भरोसे के साथ में प्रार्थना करते हैं तो आप वर्तमान की परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। The word of God says the Holy Spirit indwells the believers. परमेश्वर का वचन कहता, पवित्र आत्मा विश्वासियों को सामर्थ्य देता है। The doctor says you have cancer. डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपको कैंसर हो गया है, Don't afraid of it. आप उससे मत डरिए, Don't fear. भयभीत न होइए, And say, Holy Spirit of God, कहिए, पवित्र आत्मा you परमेश्वर, said that you are dwelling within me. तूने कहा है तू मुझ में वास करता है, You know my body got some problem. तू जानता है मेरे शरीर में कुछ समस्या है, Before I treat, you treat now. मेरे उपचार करवाने के पहले तू इसे ठीक कर दे, Because my body is the temple of the Holy Spirit. क्योंकि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, So I'm not afraid of this disease. इसलिए मैं इस बीमारी से नहीं डरता हूँ। Now the Holy Spirit of God treat with this cancer and heal me completely. पवित्र आत्मा परमेश्वर इस कैंसर का उपचार कर मुझे पूरी तरह से चंगाई दे। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और if you बहनों, want to be happy in your problems and trials and troubles, आपको अपनी परीक्षा में, संकट में निश्चय ही खुश रहना है। read what all God has done miracles for all the children of God when they were in Egypt, when they came out of the Egypt, and how they reached the Canaan promised land. What all the miracles God did, just meditate on it. तो परमेश्वर ने जो इस्राएलियों के साथ में चमत्कार किए उसके बारे में पढ़िए कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, प्रतिज्ञा के देश में उन्हें पहुंचाया। इसे पढ़ते Water जाइए। came out of the stone. चट्टान में से पानी निकला, Impossible things become possible. असंभव बातें संभव हो गई, Wonders happened. अद्भुत काम हुए, Red Sea was divided. लाल समुद्र विभाजित हुआ, They were protected by the fire of God. परमेश्वर की आग के द्वारा वो सुरक्षित In the रहे। night there was a pillar of fire. रात को आग का खंबा था Daytime pillar of cloud was protecting them. और दिन के समय बादल का खंबा उनकी रक्षा करता था। God gave them victory after victory. परमेश्वर ने उन्हें विजय पर विजय दी The troubles after troubles they faced, और समस्याओं के बाद समस्याओं का सामना किया, God gave them victory after victory. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें विजय पर विजय दी। Devil will bring problems after problems, but don't worry, have a confidence, God will give you victory after victory. शैतान तो बस समस्याओं के ऊपर समस्या लेकर आता है, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको विजय पर विजय देता चला You जाएगा। have to meditate what all God has done for us. परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया उस पर आपको मनन करना होगा। Job chapter 5:9, अय्यूब 5:9, Job chapter 9:10, अय्यूब 9:10, Psalms 77 verse 14 and 15, भजन संहिता 47 वचन 14 और Psalms 15, 136 verse 1 to 8. भजन संहिता 136 वचन 1 से 8, And what all the Lord Jesus did, Matthew chapter 4, 22 to 24. मत्ती अध्याय 4 वचन 22 से 24, Luke chapter 4 verse 40 to 44. लूका अध्याय 4 वचन 40 से 44 तक, Matthew chapter 15 verse 22 to 34. मत्ती अध्याय 15 वचन 22 से 34 तक आप देख सकते हैं। And wonders happened. अद्भुत काम किए, Cast out demons. उसने दुष्ट आत्माओं को There निकाला, was a deliverance. छुटकारा दिया। Mark chapter 5 verse 1 to 18. मरकुस अध्याय 5 वचन 1 से 18, Mark chapter 1 was 15 to 21.
मरकुस अध्याय 1 वचन 15 से 21, Mark chapter 1 verse 20 to 36. मरकुस अध्याय 1 वचन 20 से 36। In all these scriptures, इन सारे वचनों में in Mark chapter 1 verse 40 and 42 also, मरकुस अध्याय 1 वचन 40 से 42 में भी हम देख सकते हैं miracles happen. चमत्कार हुए। Believe that God will help you. विश्वास कीजिए प्रभु आपकी Say, मदद करेगा, Jesus is with you. वो आपके साथ में है। Third point, please look at the third point. तीसरा पॉइंट देख लीजिए। We can look at the future with prayer. Through prayer, you can look at the future. प्रार्थना के द्वारा हम भविष्य को देख सकते हैं। We can see the future through prayer, my brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना के द्वारा भविष्य को देख सकते हैं। Sure, in prayer, when you ask, believe that God will give you that future. प्रार्थना करते समय भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपको वो भविष्य देगा। Yes, God will bless, God will shape your children, God will shape your house, God will shape your life. परमेश्वर आपको आकार देगा, आपकी जिंदगी को आकार देगा, आपके बच्चों को परमेश्वर आकार देगा। Philippi chapter 1 verse 7, Ephesians chapter 3:20. फिलिपी अध्याय 1 वचन 7, इफिसियों अध्याय 3 वचन 20। God can bring wonderful things out of it. You can see wonderful future through your prayer. आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अद्भुत भविष्य को देख सकते हैं, आनंदित हो सकते The हैं। fourth one, चौथी we बात, can rely on the strength of the Lord every day. हम अपने जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर के बल पर, उसके सामर्थ पर आधारित रह सकते हैं। When we learn to rely on the strength of the Lord, जब हम परमेश्वर के बल पर आधारित रहना सीखते हैं, no one can shake you, my brother. तो आपको कोई नहीं हिला सकता मेरे भाई। No storm can put you down. कोई तूफान आपको नीचे नहीं गिरा No सकता, floods can destroy कोई you दहशत आपको नाश नहीं कर सकती, because you are strengthened by the Lord's power. क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आपको बल मिला He's the है। King of Kings, Lord of Lords. वो तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। The joy of the Lord is my strength. Nehemiah chapter 8 verse 10. निहमिया अध्याय 8 वचन 10, परमेश्वर का आनंद मेरा